وہ شخص جس کے نام سے ہی بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، جس کی ایک آواز پر شہر بند ہو جاتا تھا، آج وہ ایک معمولی سی دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا کپ کپاتے ہاتھوں سے چینی کا وزن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ گھبراہٹ تھی کہ کہیں وزن غلط نہ ہو جائے۔ لیکن پھر منظر بدلا۔ وہی شخص جو جھاڑو لگا رہا تھا، اب اس کے ہاتھوں میں جدید خودکار ہتھیار تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ نرمی غائب ہو گئی تھی اور وہاں وہی پرانا شکاری لوٹ آیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے دشمن موت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، میں نے محبت کے لیے ہتھیار چھوڑے تھے، چلانا نہیں بھولا۔ تم لوگوں نے میری کمزوری کو چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ ایک شکاری ایک دکان کا ملازم کیسے بنا اور پھر واپس شکاری کیوں بنا؟ یہ کہانی اسی جنون کی ہے۔ کمرے میں شدید سناٹا تھا۔ میز کی ایک طرف زاویہ سکندر بیٹھا تھا اور دوسری طرف ہورین۔ زاویہ کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اطمینان اور آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ زاویہ سکندر تھا، داؤد سکندر کا پوتا، جس نے آج تک جو چاہا وہ حاصل کیا تھا۔ اس نے ہورین کے سامنے شادی کی پیشکش رکھ دی اور اب وہ جواب کا منتظر تھا۔ ہورین نے بہت اطمینان سے اپنے سامنے رکھی ہوئی پیالی کو میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی زاویہ کی دولت کا کوئی رو۔ یہی وہ چیز تھی جس نے زاویہ کو اس لڑکی کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور نہ اس کے ایک اشارے پر ہزاروں حسین چہرے اس کے قدموں میں ہوتے تھے۔ لیکن ہورین کی آنکھوں میں جو بے باکی اور چمک تھی وہ کہیں اور نہیں تھی۔ زاویہ نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ ہورین، تم جانتی ہو میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری دنیا میں تمہارا مقام ملکہ جیسا ہوگا، بس ایک ہاں کی دیر ہے۔ ہورین نے گہرا سانس لیا اور زاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ مسٹر زاویہ، آپ کو لگتا ہے کہ طاقت اور دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ شاید آپ کی دنیا میں ایسا ہوتا ہوگا، مگر میری دنیا الگ ہے۔ یہاں عزت اور محبت سکون سے نہیں تولی جاتی۔ زاویہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اسے یہ لہجہ پسند نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ ہورین نے بات جاری رکھی، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زاویہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ بات شرطوں پر ہی آئے گی۔ شاید اسے کوئی بڑا گھر چاہیے ہوگا یا زیورات۔ تم جو بھی شرط رکھو گی مجھے منظور ہے، بھلے وہ کتنا ہی مہنگا تحفہ کیوں نہ۔ ہورین مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ میری شرط کا تعلق آپ کی دولت سے نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی مجھے حاصل کرنا چاہتے تو آپ کو اپنی یہ تمام طاقت، یہ گاڑیاں، یہ محافظ اور یہ روب تاپ اگلے 15 دن کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ زاویہ چونک گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا مطلب بہت سادہ ہے۔ ہورین نے انگلی اٹھا کر اسے متوجہ کیا۔ آپ کو ایک عام انسان بن کر ایک معمولی سے آدمی کی طرح میرے گھر میں رہنا ہوگا، اور صرف یہ رہنا نہیں ہوگا بلکہ میرے والد کی کریانہ کی دکان پر ایک مددگار کے طور پر کام بھی کرنا ہوگا۔ اب وہ سب کام کریں گے جو ایک عام ملازم کرتا ہے، صفائی، سودا تولنا، گاہکوں کی بات سننا۔ اگر آپ 15 دن تک بنا کسی شکایت اور بنا اپنی طاقت کا استعمال کیے کر سکتے ہیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ کمرے میں موجود وقت جیسے تھم سا گیا۔ زاویہ کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ وہ زاویہ سکندر جس کے دادا کے نام سے لوگ لڑتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی دکان پر آٹا اور چینی تولے گا؟ یہ ناممکن تھا۔ یہ اس کی انا کی توہین تھی۔ اس کے محافظ اکثر اگر یہ بات سن لیتے تو شاید یقین نہ کرتے۔ زاویہ نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، تم مذاق کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں یہ سب نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہورین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تو پھر بھول جائے مجھے۔ جو شخص میری خاطر اپنی انا نہیں چھوڑ سکتا وہ مجھ سے محبت کیا کرے گا؟ راستہ وہ سامنے ہے۔ ہورین مڑ کر جانے لگی۔ زاویہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا خاندان، روب، اس کی شان و شوکت اور اس کی اکڑی ہوئی گردن تھی، اور دوسری طرف وہ لڑکی تھی جس نے اس کے بنجر دل پر پہلی بار دستک دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہورین چلی گئی تو اسے زبردستی اٹھا تو سکتا ہے مگر اس کا دل کبھی نہیں جیت سکتا، اور زاویہ کو لاش نہیں، وہ جیتی جاگتی ہورین چاہیے تھی۔ ہورین دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ رکو زاویہ، اس کی آواز گونجی۔ ہورین رک گئی۔ اسے مڑ کر نہیں دیکھا، بس اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔
जावेद ने अपनी मुट्ठी भींची और फिर ढीली छोड़ दी। उसे एक लंबा सांस लिया, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उठाने वाला हो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हुरैन ने मुड़ कर देखा। हुरैन जावेद की आंखों में एक गुस्सा नहीं बल्कि एक अज़्म था। एक ऐसा अज़्म जो बड़े बड़े दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आज वो खुद मोहब्बत के हाथों मजबूर हो चुका था। सोच ले मिस्टर शिकारी। हुरैन ने उसके उसके मशहूर लक़ब से उसे पुकारा। आटा तोलना बंदूक चलाने से ज्यादा मुश्किल होता है, वहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। जावेर ने मेज से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। जावेर सिकंदर, जब कोई फैसला कर लेता है तो पीछे नहीं हटता। कल सुबह मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, अकेला और खाली हाथ। होरन ने इस बात में सर हिलाया और वहां से चढ़ गई। और जावेर वहीं खड़ा रहा। उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कबूल कर लिया। वो दुकान, वो मोहल्ला, वो आम जिंदगी उसके लिए किसी भी मैदान जंग से ज्यादा मुश्किल साबित होने वाली थी। लेकिन वो तैयार था, क्योंकि वो हुरन को हारना नहीं चाहता था। यहाँ से हम वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं, ताकि ये समझ सके कि वो शख्स जो आज एक लड़की की खातिर अपनी अना कुर्बान करने जा रहा है, असल में है कौन। जावेर सिकंदर 28 वर्ष का एक अजिया और रूपदार नौजवान था, जिसकी शख्सियत में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश थी, मगर उसके करीब जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वो अपने दादा दाऊद सिकंदर का इकलौता वारिस और उनकी आंखों का तारा था। शहर के लोग उसे एक बेरहम इंसान समझते थे, मगर बहुत कम लोग जानते थे कि उस बेहिसी के पीछे एक मासूम बच्चे का वो दर्द छुपा था। जब जावियर बहुत छोटा था तो उसके सर से वालिदैन का साया उठ गया। एक मुखालिफ गुरु ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें वो दोनों जान की बाजी हार गए। नंदा जावियर घर पर था और जब उसे ये खबर मिली तो वो रोया नहीं, क्योंकि उसके दादा ने उसे रोने की इजाजत नहीं दी। दाऊद सिकंदर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर कहा कि शेर, रोते नहीं, वो बदला लेते हैं। उसी दिन से जावियर का बचपन खत्म हो गया। दादा ने उसे बहुत लाड और प्यार से पाला, लेकिन साथ ही साथ उसे दुनिया का मुकाबला करने के लिए फौलाद बना दिया। उसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया गया, लेकिन किताबों के साथ साथ उसे खुद की हिफाजत और दुश्मन को ज़ेर करने के तरीके भी सिखाए गए। जवानी तक पहुंचते पहुंचते वो एक शिकारी बन चुका था, जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता था। जावेर के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उसके एक इशारे पर दुनिया की हर आसाइश उसके कदमों में हाजिर हो जाती थी। वो एक ऐसे बंगले में रहता था जो किसी शाही महल से कम नहीं था, मगर उस महल की दीवारें उसे काटती थी। वहाँ खामोशी का राज था। उसके पास दर्जनों मुलाजिम और सैकड़ों मुहाफिज थे, मगर कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सकता। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने दादा का हुक्म मानना और खानदानी दुश्मनों का सफाया करना था। रात के वक्त जब वो अपने वसी और रीस कमरे में अकेला होता, तो उसे अपने तन्हाई का शिद्दत से एहसास होता। उसे लगता कि उसके पास सब कुछ है, मगर दर हकीकत उसके पास कुछ नहीं। न सुकून, न खुशी और ना ही मोहब्बत। उसका दिल एक वीरान सहरा की तरह था, जहाँ उम्मीद का कोई पौधा नहीं उगता था। दूसरी तरफ शहर के गुंजान आबाद और मुतवस्सित तबके के इलाके में जिंदगी का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ की गलियां तंग थी, मगर दिल कुशादा था। ये हुरैन का घर था, जो जावियर की खामोश दुनिया के बिल्कुल बरक्स चहको और रौनक से भरा था। हुरैन 21 साल की एक इंतहाई जिंदा दिल और शौक लड़की थी। वो यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थी और अपनी मासूम शरारतों की वजह से पूरे घर की जान थी। उसका ताल्लुक एक सफ़ेद पोश घराने से था। उसके वालिद ताहिर साहब मोहल्ले के एक शरीफ और दीनदार आदमी थे, जो करीबी बाजार में करियाना की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। वो ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी औलाद को रिज्क हलाल खिलाया था और बेहतरीन तरबियत दी थी। घर का निज़ाम हुरन की वालदा सलमा बेगम चलाती थी। वो एक रवायती मशरकी खतून थी, जिनकी जिंदगी का महवर उनका शौहर और ये बच्चे थे। वो सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती और सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। उनके हाथ के खाने में जो जायका था, वो बड़े बड़े होटलों के खानों में भी नहीं मिलता था। हुरैन का एक छोटा सा भाई आहत था, जो भी स्कूल में ही पढ़ता था और हुरैन का बहुत लाडला था। हालांकि दोनों बहन भाइयों में हर वक्त नोक जोक चलती रहती थी। कभी टीवी के रिमोट पर लड़ाई होती, तो कभी खाने में बोटी पर बहस। मगर इस लड़ाई में भी एक प्यार छुपा होता था। शाम के वक्त जब ताहिर साहब दुकान से वापस आते, तो सारा घराना सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ जाता। चाय का दौर चलता और दिन भर की बातें होती। उनके पास महंगी गाड़ियां या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था। कभी कभी महीनों के आखिर में
हाथ तंग भी हो जाता था, मगर उनके चेहरे पर इत्मीनान था। वो छोटी छोटी खुशियों को मनाना जानते थे। अगर कभी खाने की में गोश्त की जगह दाल भी पकती तो वो शुक्र अदा करके खाते। हुरैन अक्सर सोचती कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत सुकून और अपने प्यारों का साथ है। वो इस मामले में दुनिया की अमीर तरीन लड़की थी। उसे खबर नहीं थी कि जल्दी उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी एक ऐसे तूफान से टकराने वाली है जो उसकी जिंदगी का रुख मोड़ देगा। ये दो मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ दौलत और ताकत का गरूर था, तो दूसरी तरफ सादगी और कनात का नूर। वक्त का पहिया मजीद कुछ पीछे की तरफ घूमता जब उन दोनों अजनबियों का सामना पहली बार हुआ था। वो दोपहर का वक्त था। सूरज पूरी आगोताप से चमक रहा था। जावेर सिकंदर अपनी कीमती गाड़ियों के काफले के साथ शहर के मरकजी सड़क से गुजर रहा था। अचानक गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई और फिर काफिला रुक गया। आगे ट्रैफिक का शदीद दबाव था। जावेर ने बिजारी से पेशानी मस्ती और स्याह शीशे से बाहर देखा। सड़क के किनारे लोगों का हजूम जमा था। शोरगुल की आवाजें आ रही थी। आमतौर पर वैसी चीजों पर तवज्जो नहीं देता था, मगर आज ना जाने कि उसने गौर से देखा। भीड़ के दरमियान एक गरीब बच्चा जमीन पर गिरा रो रहा था। उसके रंग बिरंगे गुब्बारे फट चुके थे और वो मिट्टी में लथपथ थे। उसके सामने एक अमीर कबीर घराने का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा कह के लगा रहा था। ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर उस बच्चे को धक्का दिया था। इर्द गिर्द खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस अमीर लड़के को टोक सके। तभी हुजूम को चीरती एक लड़की सामने आई। निहुरन थी। उसने एक लम्हा जाए के बगैर उस लड़के का हाथ झटक दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसकी आवाज में ऐसी गर्ज थी कि सब खामोश हो गए। लड़का हैरान रह गया। तुम जानती हो मैं कौन? तुम जो भी हो मगर इंसान नहीं हो। हुरैन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इस मासूम की रोजी बर्बाद करके तुम्हें हंसी आ रही है? फौरन से इससे माफी मांगो और इसके नुकसान के पैसे भी दो। गाड़ी में बैठा जावियर ये सब देख रहा था। उसके मुहाफिज बाहर निकलने लगे तो उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी बेबाकी से लड़ते दिख रहा था। वो खुद ताकत का खुदा था। लोग उसके साय से भी डरते थे, मगर ये लड़की तो बिल्कुल अलग मिट्टी की बनी थी। उस लड़के ने हुरैन को डराने की कोशिश की, मगर हुरैन ने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। उसका ये अंदाज देखकर लड़का घबरा गया और शर्मिंदा होकर उसे जेब से पैसे निकालकर बच्चे को दिए और वहां से भाग गया। हुरैन ने बच्चे को उठाया और उसके कपड़े झाड़े और उसे दिलासा दिया। जावियर की नजरें उस लड़की के चेहरे पर जम गई। उसकी बंजर और वीरान दिल में जिसे पहली बार किसी ने दस्तक दी थी। वो काफी देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। ट्रैफिक खुल गया, गाड़ियां चल पड़ी, मगर जावियर का दिल वही रह गया। इस वाक़े के बाद जावियर के लिए चैन से बैठना बहाल हो गया। वो जो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया करता था, अब खुद एक अनजानी कैफियत का शिकार हो चुका था। उसने उसी शाम अपने खास आदमियों को काम पर लगाया। कुछ ही देर में उसके पास मालूमात का ढेर था। उसे पता चला कि इस नर्डर लड़की का नाम हुरैन है और वह शहर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब जावेर का ये मामूल बन गया कि वो रोजाना अपने सारे काम छोड़कर यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करता और घंटों उसके बाहर आने का इंतजार करता। वो छुप कर उसे देखता रहता। हुरैन अपनी सहेलियों के साथ हंसती मुस्कुराती गुजर जाती और जावेर उसे देखकर अजीब सा सुकून महसूस करता। ये दिलचस्पी अब महज पसंदगी नहीं रही थी, बल्कि एक पागलपन और जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। आखिरकार उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो मजीद दूर रहकर तमाशा नहीं देख सकता था। उस दिन जब हुरन छुट्टी के बाद घर जाने के लिए निकली तो अचानक 3-4 बड़ी स्याह गाड़ियां उसके रास्ते में आकर रुकी। हुरन घबरा गई। गाड़ियों से मसला मुहाफिज निकले और उन्होंने घेरा डाल लिया। हुरन का सांस हलक में ही अटक गया। उसे लगा शायद कोई दहशतगर्द है। तभी दरमियान वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और जाविया और सिकंदर बाहर निकला। वो सीधा चलता हुरन के सामने आया। उसके चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी। उसने बिना किसी तमीद के, बिना उधर उधर की बात किए, सीधा मुद्दा बयान किया। मेरा नाम जावेर सिकंदर है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हुरन को लगा कि इसके कान बज रहे हैं। ये कोई मजाक था या हकीकत? उसने अपने हवास बहाल किए और गुस्से से कहा, आप होश में तो है? रास्ता छोड़े मेरा। हुरन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर जावियर रास्ते से ही नहीं हटा। मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ।
कल तुम्हारे घर रिश्ता आएगा। जावेर की जिद देखकर हुरन समझ गई कि शख्स बातों से नहीं मानेगा। उसे डर भी लग रहा था, मगर उसने अपने असाब पर काबू रखा। उसने सोचा कि अगर उसने जान छुड़ानी है तो इसे ऐसा काम सौंपना होगा जो वो कभी ना कर सके। तब उसके जहन में वो शर्त आई। उसने सोचा कि अमीर ज्यादा दुकान पर झाड़ू देने की बात सुनकर ही भाग जाएगा और मुड़कर कभी नहीं देखेगा। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस शख्स से उसका पाला पड़ा है वो हार मानना जानता ही नहीं है। हुरैन ने उसे भगाने के लिए शर्त रखी, मगर जावियर ने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जावियर ने हुरैन की अजीबो गरीब शर्त मान तो ली थी, मगर उस पर अमल करना आग के दरिया से गुजरने के मुतरादिफ था। ताहम वो अपने वादे का पक्का था। अगले ही दिन सुबह सवेरे हुरैन के दरवाजे पर दस्तक हुई। हुरैन बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही थी। दस्तक सुनकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके जहन में भी नहीं था कि बाहर कौन हो सकता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं जम गए। सामने जाविया और सिकंदर खड़ा था, लेकिन ये वो जाविया नहीं था जिसे वो जानती थी। ना कोई लंबी महंगी गाड़ी, ना स्याह लिबास में मलबूस मुहाफिजों की फौज, और ना ही कीमती सूट। वो एक इंतहाई मामूली शलवार कमीज में मलबूस, पाँव में सादा सी चप्पल थी, हर हाथ में एक छोटा सा बैग था। हुरन की आंखें हैरत से फैल गई। आप वाकई आ गए? उसके मुंह से बेगचार निकला। जावेर के चेहरे पर थकन थी, मगर लहजे में वही पुराना अज़्म था। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। शर्त शर्त होती है। इसी दौरान ताहिर साहब और सलमा बेगम भी बाहर आ गए। वो एक अजनबी नौजवान को दरवाजे पर खड़ा देखकर सवालिया नजरों से हुरैन को देखने लगे। हुरैन एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। उसने फौरन खुद को संभाला। अब वो ये जाविया है, मेरी यूनिवर्सिटी का, जिसका अगर कुछ मसाइल का शिकार है तो ये कुछ दिन हमारे पास रहना चाहता है, अगर आप इजाजत दे तो। हुरैन ने झूठ बोला, क्योंकि वो अपने वालिदैन को असल हकीकत बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ताहिर साहब बहुत मेहमान नवाज इंसान थे। उन्होंने आगे बढ़कर जावियर के सर पर हाथ रखा। खुशामदीद बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो रहो। उन्होंने जावियर को घर के बाहर छोटे से मेहमान खाने का रास्ता दिखाया। जावियर उस कमरे में दाखिल हुआ। ये एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी चारपाई बिछी हुई थी और छत पर एक पंखा आहिस्ता रफ्तार से चल रहा था। दीवारों का प्लस्तर कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था। जाविर, जो मखमल के बिस्तर पर सोने का आदी था, उसके लिए जगह किसी कैद खाने से कम नहीं थी। उसने अपना बैग चारपाई पर रखा और गहरा सांस लिया। उसके अंदर की अनाज चीख रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, मगर फिर उसे हुरैन का चैलेंज याद आ गया। उसे खुद से अहद किया कि वो ये 15 दिन गुजार कर ही दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह, अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था, कि ताहिर साहब ने मेहमान खाने का दरवाजा खटखटाया। उठो बेटा, जावियर, दुकान खोलने का वक्त हो गया। जावियर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा मौका आया था कि कोई इसे इस तरह हुक्म देकर उठा रहा था। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आया। ताहिर साहब से अपने साथ लेकर मोहल्ले की नुक्कड़ पर मौजूद अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंचे। दुकान का शटर उठाते ताहिर साहब ने एक झाड़ू जावियर के हाथ में थमा दिया। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करो, पहले दुकान की सफाई कर लो। जावियर ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई बहुत खतरनाक हथियार हो, जिसे चलाने का उसे कोई तजर्बा ही ना हो। वो कभी दाएं तरफ झाड़ू मारता तो कभी बाएं तरफ। दुकान में मौजूद जहाँ चीजों से टकरा कर सामान गिरने की आवाजें आने लगी। कोरन जो घर की खिड़की से ये सब देख रही थी, अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो शख्स जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे, आज दुकान में गिर्द उड़ाता फिर रहा था। जावेद ने जोर से झाड़ू मारा तो मिट्टी का एक बाउल उठा और जो सीधा उसके मुंह पर गया। वो बुरी तरह से खांसने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में पानी आ गया। हुरन फौरन पानी का गिलास लेकर दुकान की तरफ भागी। ये ले, पानी पी। जावेद ने खांसते उसके हाथ से गिलास लिया और एक ही सांस में पी गया। जब उसका सांस बहाल हुआ तो उसने सर उठाकर देखा। खुरन की लबों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। लगता है शिकारी साहब के लिए शिकार करना आसान है, मगर सफाई करना मुश्किल। खुरन ने आहिस्तगी से कहा। जावेद ने उसकी आंखों में देखा। वहां वो पहले वाला खौफ नहीं था, बल्कि अपनाइट थी। उस मिट्टी और गिर्द के दरमियान उस छोटे से लम्हे में जावेद को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं सारी उम्र ये मिट्टी फाँकने को भी तैयार हूं, जावेद ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हुरैन एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर नजरें झुकाकर
ग्लास वापस लिया और घर की तरफ चली गई। जावियर उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि इस मुश्किल इम्तिहान में भी कुछ ऐसा है जो उसके दिल को भा रहा है। उसने दोबारा झाड़ू उठाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेजारी नहीं बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सूरज सर पर आ चुका था और दुकान पर खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा था। जावेर के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था। वो शख्स जो बड़ी बड़ी कारोबारी डील्स पलक चिपकते तय कर लेता था, आज उसे दालों और चावलों के भाव याद रखने में पसीना आ रहा था। ताहिर साहब किसी काम में थोड़ी देर के लिए किसी गोदाम में गए थे और दुकान का सारा निजाम अब जावेर के कंधों पर था। लोगों की आवाजें उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह लग रही थी। भाई साहब जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। अरे भाई, ये क्या दे रहे हो? मैंने तो कुछ और मांगा था। जावेर का दिमाग चकरा रहा था। उसने जिंदगी में कभी 1 रुपए का सौदा नहीं खरीदा था और यहाँ उसे दर्जनों लोगों का हिसाब रखना पड़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की कतरे नमूदार हो चुके थे। तभी एक सही फुल उम्र खातून दुकान के काउंटर पर आई। उनकी नज़र कमजोर थी और लहजा सख्त। बेटा, मुझे आधा किलो चावल, दाल और मूंग मूंग की दाल दे दो, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। जावेर ने हड़बड़ाहट में साथ बड़ी बोरी से लिफाफा बड़ा और तोलकर उन्हें पकड़ा दिया। अम्मा जी ने लिफाफा खोलकर देखा तो उनका पारा चढ़ गया। ओ भाई, अंधे हो क्या? ये दाल मूंग है, ये तो चीनी है। अकल घास चढ़ने की है क्या तुम्हारी? अम्मा जी की डांट सुनकर दुकान पर खड़े बाकी लोग हंस पड़े। जावेर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उसकी अना को शदीद ठेस पहुंची। उसका दिल चाह कि अभी दुकान का शटर गिराए और वापस अपनी दुनिया में चला जाए, जहाँ कोई उससे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं करता था। इस दौरान हुरैन दोपहर का खाना लेकर दुकान में दाखिल हुई। उसे जावियर का उतरा हुआ चेहरा और अपनी अम्मा का गुस्सा देखा तो फौरन मामला समझ गई। उसने आगे बढ़कर अम्मा जी से माजरत की और जल्दी से दाल तोलकर उन्हें दी। जब रश कुछ कम हुआ और दुकान खाली हुई तो हुरैन ने खाना मेज पर रखा और जावियर के पास आ गई। क्या हुआ मिस्टर शिकारी? लगता है ये मैदानी जंग आपके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हुरैन ने नरमी से पूछा। जाविर ने गहरा सांस लिया और कुर्सी पर बैठ गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये बात, ये तराजू, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बंदूक चलाना उससे कहीं ज्यादा आसान है। वहां फैसला एक गोली से होता है, यहाँ तो हर ग्राम का हिसाब देना पड़ता है। हुरैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसने तराजू अपनी तरफ खींचा। इधर देखे, ये इतना मुश्किल नहीं है। हुरैन उसे समझाने लगी। ये किलो का बाट है, क्या आधा किलो का? ये कांटा बिल्कुल दरमियान में आए तो समझे वजन पूरा है। और ये दालों के नाम याद रखें, जो पीली है वो मूंग है, जो काली है वो माश है। जाहिर खामोशी से हुरैन को देख रहा था। वो कितने प्यार और इत्मीनान से उसे समझा रही थी। उसके समझाने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई उस्तानी अपने नालायक शागिर्द को पढ़ा रही हो। जाविर की नजरें तराजू पर कम और हुरैन के चेहरे पर ज्यादा थी। उस घुटन ज्यादा माहौल और थका देने वाले काम के दौरान हुरैन की आवाज से खसे ठंडी हवा के झोंके जैसी लग रही थी। आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? हुरैन ने चुटकी बजाई। जावेद चौंक गया। हाँ, सुन रहा हूँ। तुम बहुत अच्छा समझाती हो। हुरैन ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। हिम्मत ना हारे, अभी तो शुरुआत है। अगर आपको मेरी शर्त पूरी करनी है तो ये सब सीखना पड़ेगा। जावेद ने पानी पीते हुए सोचा कि सड़की की गुर्बत पाने के लिए अगर से सारी जिंदगी भी दालें तोलनी पड़ी तो ये सौदा करने को तैयार है। ये वो लम्हा था जब उनके दरमियान एक खामोश और अनकहे ताल्लुक की बुनियाद पड़ रही थी। हुरैन को पहली बार महसूस हुआ कि शख्स इतना बुरा नहीं है जितना वो समझती थी। उसके अंदर भी एक आम इंसान छुपा है जो कोशिश कर रहा है। दिन भर की थकन के बाद जब रात का अंधेरा छाया तो मोहल्ले की रौनकें मदम बढ़ गई। दुकान बंद करके जाविर और ताहिर साहब घर लौटे। जाविर का जिस्म बुरी तरह से टूट रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस थकन में भी उसे एक सुकून महसूस हो रहा था जिसे नरम गुदाज बिस्तर पर लेट कर कभी नहीं मिला था। घर के सहन में चारपाइयों पर दस्तरखान बिछा दिया गया। सब घर वाले इकट्ठे बैठ गए। सलमा बेगम ने गर्मा गर्म रोटियां और सालन सबके सामने रखा। इस जावेर के लिए माहौल बिल्कुल नया था। उसके बंगले में वो एक लंबी मेज पर अकेला खाना खाता था, जहाँ खामोशी का राज होता था, लेकिन यहाँ ये नवाले के साथ बातें और हंसी मजाक चल रहा था। खाने के दौरान हुरैन का छोटा भाई
आहत जावेर के मजीद खिसक आया करीब। भाई जावेर, आपको क्रिकेट पसंद है? आहत ने मासूमियत से पूछा। जावेर चौंक गया। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब कोई खेल खेला था। हाँ, मुझे पसंद था मगर अब काफी अरसा हो गया। जावेर ने जवाब दिया। तो हम कल छत पर खेलेंगे, मैं आपको अपनी टीम में रखूंगा। आहत ने खुश होकर कहा। जावेर ने मुस्कुराकर हामी भर ली। सलमा बेगम ने जावेर की प्लेट में मजीद सालन डाला। खाओ बेटा, तुमने आज बहुत मेहनत की है, कमजोर हो जाओगे। उन्होंने इतनी खलूस से कहा कि जावेर की आंखें नम हो गई। उसे अपनी माँ याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो सारी उम्र जिस दौलत के पीछे भागता रहा, असल दौलत तो यहाँ है, इस मोहब्बत और खलूस में। खाने के बाद लूडो की बाजी लगाने का फैसला हुआ। ताहिर साहब अखबार पढ़ने बैठ गए, जबकि जावेर, हुरैन, आहत और सलमा बेगम लूडो खेलने लगे। खेल के दौरान खूब शोर शराबा हुआ। आहत अपनी गोटी गिरने पर चीखता और जीतने पर तालियां बजाता। जावेर की नजरें बार बार हुरैन पर उठती। वो खेल में मगन थी और उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। खेल के आखिरी मरहले में जावेर और हुरैन आमने सामने थे। जावेर के पास मौका था कि वो हुरैन की गोटी काट कर जीत सकता था। उसने पासा फेंका, वही नंबर आया जिसकी उसे जरूरत थी। हुरैन का चेहरा उतर गया, वो हारने वाली थी। जावेर ने एक लम्हा हुरैन को देखा, पर जानबूझकर अपनी दूसरी गोटी चल दी और हुरैन की गोटी छोड़ दी। अरे, आपने गलत चाल चल दी, आप जीत सकते थे। हुरैन ने शोर मचाया। कोई बात नहीं, कभी कभी हारने में भी जीत होती है, जावेर ने धीमी आवाज में कहा। अगली पारी में हुरैन जीत गई और उसने खुशी से नारा लगाया। उसकी वो खुशी और फातिहाना मुस्कुराहट देखकर जावेर को लगा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बाजी जीत गया है। हुरैन समझ गई कि जावेर ने जानबूझकर उसने जीतते दिया है। उसने तशक्कुर भरी नजरों से जावेर को देखा। जावेर ने दिल में सोचा कि खौफ से लोगों को झुकाना आसान है, लेकिन मोहब्बत से हार कर किसी के दिल में जगह बनाना ये असल जिंदगी है। उस रात जावेर जब अपनी चारपाई पर लेटा तो उसे महसूस हुआ कि वो शिकारी नहीं रहा, बल्कि एक आम इंसान बनता जा रहा है। और ये तब्दीली उसे बहुत पसंद आ रही थी। दिन गुजरते गए और जावेर मोहल्ले के माहौल में रच बस गया। उसे मोहल्ले वालों से एक अजनबी मीरजादे के तौर पर नहीं, बल्कि ताहिर साहब के एक मुख्ती मुलाजिम और शरीफ मेहमान के तौर पर जानते थे। लेकिन सुकून का ये दौरा ज़्यादा देर नहीं चल सका। एक दोपहर दुकान पर कुछ कम रश था कि अचानक एक मोटरसाइकिल दुकान के सामने आकर रुक गई। उस पर से जुवेद उतरा, जो इस इलाके का नामी ग्रामी बदमाश था। वो सीधा दुकान के काउंटर पर आया और ताहिर साहब से ऊंची आवाज में मुखातिब हुआ। ताहिर साहब, पिछले महीने का और इस हफ्ते का राशन निकाली, और सुनो, इस बार खाते में मत निकला, समझो तुम्हारी तरफ से तोहफा है। ताहिर साहब ने घबरा कर कहा, भाई जवेद, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं उधार नहीं दे सकता, और तोहफा तो बिल्कुल भी नहीं, मेरा भी घर पार है। जवेद ने गुस्से में आकर काउंटर पर हाथ मारा। तुम मुझे ना करोगे? लगता है तुम्हारी चर्बी ज्यादा हो गई है। उसने आगे बढ़कर ताहिर साहब का गिरबान पकड़ने की कोशिश की। जावेद, जो पास ही खड़ा चीनी की बोरियां तरतीब दे रहा था, ये सब देखकर साकित हो गया। उसके अंदर का सोया हुआ शिकारी एक झटके से बेदार हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उंगलियां सफेद पड़ गई। उसके लिए जवेद जैसे शख्स की गर्दन मरोड़ना एक सेकंड का काम था। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ उठने ही वाला था कि उसकी नजर दुकान के पिछले दरवाजे पर पड़ी। वहां हुरैन खड़ी थी। उसका चेहरा खौफ से जर्द था और वो लड़स रही थी। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी कि रुक जाओ। जाबिर को फौरन अपनी शर्त याद आ गई। उसे वादा किया था कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर उसने आज हाथ उठाया तो वो जीत कर भी हार जाएगा। जाबिर ने एक बहुत गहरा सांस लिया और अपने उबलते हुए गुस्से को जबरदस्ती पी गया। उसने अपनी मुट्ठी ढीली की और झुकी हुई गर्दन के साथ जुवेद के सामने आ गया। भाई साहब, आप गुस्सा ना करें। ताहिर साहब बुजुर्ग है, गलती हो गई, आप तशरीफ रखें, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जावेद का लहजा इतना धीमा और आजिजाना था कि जवेद भी हैरान रह गया। वो जावेद को हकारत से देखते बोला, हाँ, तुम समझदार लगते हो, अब मालिक को भी समझा दो कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात ना करे। जवेद कुछ देर बुड़बुड़ाया और फिर वहां से चला गया। ताहिर साहब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन हुरन की नजरें जावियर पर जमी थी। वो जानती थी कि जावियर कौन है। वो जानती थी कि उस शख्स के लिए ऐसे बदमाशों को खत्म करना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन सिर्फ उसकी खातिर
उसने अपनी इतनी बड़ी अना को कुचल दिया था और सर झुका लिया। हुरन के दिल में जावेर के लिए जो इज्जत पैदा हुई वो पहले कभी नहीं थी। उसे यकीन हो गया कि ये शख्स उसकी मोहब्बत में वाकई बदल चुका है। उस वाक़ये के बाद हुरैन और जावेर के दरमियान अजनबियत की दीवार मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थी। अब उनके दरमियान बाकायदा बातचीत होने लगी थी। शाम के वक्त जब हुरैन छत पर कपड़े सुखाने जाते, नीचे सेन में बैठा जावेर उसे देखता रहा था। अब हुरैन नजरें नहीं चुराती थी बल्कि हल्का सा मुस्कुरा देती थी। वो दोनों खामोशी की जुबान समझने लगे थे। कुछ दिन बाद मौसम ने अंगड़ाई ली। शाम से काली घटाएं छा गई और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से पूरे इलाके की बिजली चली गई। घर में खूब अंधेरा था। ताहिर साहब और सलमा बेगम अपने कमरे में थे जब आहत सो चुका था। जाफिर बरामदे में खड़ा बारिश को देख रहा था कि हुरैन मोमबत्ती जलाए वहां आ गई। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा और भी पुरकशिश लग रहा था। अभी तक जाग रहे? हुरैन ने पूछा। नींद नहीं आ रही। ये सुकून, ये बारिश, मेरी पुरानी जिंदगी में ये सब मुयस्सर नहीं था ना। जावेर ने सतून से टेक लगाते हुए कहा। हुरैन उससे कुछ फासले पर खड़ी हो गई। बारिश का शोर उनकी खामोशी को तोड़ रहा था। शर्त के दिन पूरे होने वाले जावेर, फिर आप चले जाएंगे। हुरैन की आवाज में उदासी थी। जावेर ने हुरैन की तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जा रहा हुरैन। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे वो बंगला, वो गाड़ियाँ और वो ताकत नहीं चाहिए। मुझे ये दुकान, ये छोटा सा घर और तुम चाहिए। मैं ये सादा जिंदगी हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। हुरैन का दिल जोर से धड़का। उससे पहली बार जावेर की आंखों में सच्चाई की वो चमक देखी जो कभी हीरे से भी ज्यादा कीमती थी। क्या आप वाकई ऐसा कर सकेंगे सारी जिंदगी? हुरैन ने तस्दीक चाहिए। तुम्हारे साथ हो तो 100 साल भी कम लगेंगे। मैं अब शिकारी नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारा जावेर बनकर रहना चाहता हूँ। जावेर ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। उस समय दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। दिलों के फैसले हो चुके थे। हुरैन को भी एहसास हो गया कि अब वो जावेर के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। बारिश बरसती रही और दो दिल हमेशा के लिए एक हो गए। लेकिन उन्हें खबर ही नहीं थी कि उनकी एक मोहब्बत की दास्तान में भी एक खौफनाक मोड़ आना था। माजी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मोहब्बत और सुकून के वो दिन हवा के झोंके की तरह गुजर गए। जावेर को लगने लगा कि शायद अब उसका माजी कभी परेशान नहीं करेगा, मगर वो गलत था। दुश्मन सांप की तरह होता है जो मौका मिलते ही डसता है। एक दिन जावेर दुकान के लिए कुछ सामान लेने बड़ी मार्केट गया। वापसी पर जब वो गली के मोड़ पर पहुंचा तो उसे अपनी छठी हिस्स ने खबरदार किया। उसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो एक आम इंसान नहीं था, बरसों मौत के साए में रहा था, इसलिए कदमों की आहट पहचानता था। उसने मुड़कर नहीं देखा बल्कि अपनी रफ्तार मामूल के मुताबिक रखी। एक दुकान के शीशे में पीछे का अक्स देखा। दो मशकूक अफराद उससे कुछ फासले पर चल रहे थे और फोन पर बात कर रहे थे। जावेर फौरन पहचान गया। ये उसके सबसे बड़े दुश्मन मलिक असद के खास करने थे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मगर उसे फौरन हुरन उसके घर वालों का ख्याल आया। समझ गया कि वो लोग उसका ठिकाना ढूंढ चुके हैं। अगर वो सीधा घर गया तो वो लोग फिर घर तक पहुंच जाएंगे। जावेर ने फौरन रास्ता बदल लिया। उन गलियों के चक्कर काट कर उन्हें चकमा देकर पिछले रास्ते से घर में दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि अब ये खेल खत्म हो चुका है। उसका यहाँ रहना ताहिर साहब के हंसते बसते घर को आग लगाने के मुतरादिफ था। मलिक असिद एक जालिम इंसान था और वो जावेर को मारने के लिए पूरे मोहल्ले को भी राख कर सकता था। जावेर के पास अब सोचने का वक्त बहुत कम था। उसी रात जावेर अपने कमरे में बैठा था। घर में सब सो चुके थे। खामोशी का राज था, मगर जावेर के अंदर तूफान बरपा था। उसने अपना मुख्तसर सा सामान बांध दिया था। वो जानता था कि उसे ये घर, ये गली और अपनी मोहब्बत को उसी वक्त छोड़ना होगा, वरना सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। उसने कागज और कलम उठाया। वो हुरैन को आखिरी बार मिलना चाहता था, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में देखकर खुदाफिज कह सके। उसे डर था कि अगर हुरैन रो पड़ी तो कभी नहीं जा सकेगा और यही उन सब की मौत का सबब बनेगा। उसने कांपते हाथों से खत लिखना शुरू किया। मेरी प्यारी हुरैन, मैंने सोचा था कि मैं अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारी दुनिया में बस जाऊंगा, मगर मैं गलत था। मेरा मासी मेरा साया है जो कभी मेरा पीछा नहीं छूट सकता। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकता।
میری دشمنی بہت پرانی اور گہری ہے، اور وہ دشمن میری تلاش میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر میں یہاں رہا تو تم سب کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں واپس آ رہا ہوں، اپنی اسی طریق دنیا میں جہاں سے میں واپس آیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنی شرط پوری نہ کر سکا، شاید ہماری قسمت میں ساتھ نہیں لکھا۔ اپنا خیال رکھنا، فقط تمہارا زاویہ۔ زاویہ نے خط تکیے کے نیچے رکھا۔ اس نے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے زندگی کے سب سے پرسکون دن گزارے تھے، اور پھر دبے پاؤں دروازہ کھول کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ہورن حسب معمول ناشتہ لے کر مہمان خانے کی طرف آئی۔ زاویر اٹھے، دکان جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس نے آواز دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہورن نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو چائے پائی خالی تھی، بستر ویسے ہی صاف پڑا تھا اور زاویر کا بیگ غائب تھا۔ ہورن کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ دیکھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خط کے الفاظ نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے زاویر کی مجبوری سمجھ نہیں آئی، بلکہ اس کے ذہن میں صرف یہ بات آئی کہ زاویر ہار مان گیا ہے۔ اسے لگا زاویر اس کی غربت، دکان کی مشقت اور اس سادہ زندگی سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید خطرہ محض ایک بہانہ ہے تاکہ وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹ سکے۔ تم نے بھی وہی کیا جو سب کرتے ہیں زاویر، ہورن نے روتے ہوئے خود کلامی کی۔ تم بھی دولت کے نشے میں واپس چلے گئے۔ تم نے میری محبت کو آزمائش سمجھا اور جب مشکل پڑی تو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہورن وہیں زمین پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ طاہر صاحب اور سلمہ بیگم آواز سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے ہورن کو سنبھالا اور جب خط پڑھا تو وہ بھی دکھی ہو گئے۔ گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ وہ خوشی جو زاویر کے آنے سے ہوئی تھی اس کی جانے سے ماتم میں بدل گئی۔ ہورن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو کل رات اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہا تھا آج اسے تنہا چھوڑ کے چلا گیا۔ زاویر واپس اپنی اسی حویلی آ چکا تھا جہاں سے وہ کچھ دن پہلے نکلا تھا۔ وہ اپنے دادا داؤد سکندر کے پاس واپس تو آ گیا تھا اور دوبارہ وہی مہنگے لباس پہنے لیے تھے، مگر وہ اب اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا نہ مسکراتا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کے دادا اسے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ جسمانی طور پر تو واپس آ گیا ہے، مگر اس کی روح اسی چھوٹے سے گھر میں رہ گئی ہے۔ دوسری طرف ہورن کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ احد بار بار پوچھتا کہ زاویر بھائی کہاں گئے، اور ہورن کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کا رونا غصے میں بدل چکا تھا، اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ زاویر بغیر کچھ بتائے صرف ایک خط لکھ کر رشتہ ختم کر سکتا ہے۔ اسے لگا کہ اس کے جذبات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر زاویر سے ملے گی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ طاہر صاحب نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکی۔ وہ سیدھا زاویر کی حویلی پہنچی۔ بڑے گیٹ پر کھڑے محافظوں نے اسے روک لیا۔ ہورن نے شور مچایا تو اندر سے زاویر نے کیمرے میں دیکھ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ کر باہر جائے اور اسے گلے لگا لے، مگر وہ جانتا تھا کہ دشمن کی نظریں ہر طرف ہے۔ اسے وہ محافظوں کو حکم دیا کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ ہورن اندر داخل ہوئی۔ زاویر سامنے کھڑا تھا۔ ہورن نے اسے دیکھا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ روتے اس کی طرف پڑی۔ کیوں کیا تم نے ایسا زاویر؟ کیوں؟ کیا میری محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ تم ڈر گئے؟ تم اس چھوٹی سی زندگی سے گھبرا گئے؟ ہورن نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ زاویر کا کلیجہ تک کٹ کر رہ گیا، مگر اسے اداکاری کرنی تھی۔ اسے ہورن کو یقین دلانا تھا کہ وہ ایک دھوکے باز ہے، تاکہ ہورن اس سے نفرت کرے اور دور ہو جائے، کیونکہ اسی میں اس کی حفاظت تھی۔ زاویر نے چہرے پر مصنوعی سختی طاری کی اور سرد لہجے میں بولا، دیکھو ہورن، جذباتی مت ہو، میں نے وہاں رہ کر دیکھ لیا ہے۔ میں وہ غریبوں والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے نرم بستر اور اچھی خوراک کی عادت ہے، اور وہ سب میرا ایک پاگل پن تھا جو اتر گیا۔ میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ ہورن کو لگا جیسے کسی نے اسے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ ساکت رہ گئی۔ تو سب جھوٹ تھا؟ وہ وعدے، وہ باتیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، سمجھ لو کہ جھوٹ تھا۔ اب تم جا سکتے ہو،
میرا وقت برباد مت کرو۔ زاویر نے نظریں پھیر لی کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ہورن نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم دنیا کے سب سے بزدل انسان ہو زاویر سکندر، مجھے تم سے محبت نہیں نفرت ہے، میں جا رہی ہوں اور اب کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ ہورن یہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گئی اور زاویر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ ہورن آنکھوں میں آنسو لیے حویلی سے باہر نکلی۔ وہ سڑک پر پیدل چل رہی تھی اور اس کا ذہن سن تھا۔ اسے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ بھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ ہورن کچھ سمجھ پاتی، گاڑی سے 2 نقاب پوش آدمی نکلے۔ انہوں نے ہورن کو زبردستی کھینچا اور گاڑی میں ڈال لیا۔ ہورن نے چیخنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا اور گاڑی تیزی سے بھگا لے گئے۔ یہ ملک اسد کے آدمی تھے جو کئی دن سے زاویر کی کمزوری ڈھونڈ رہے تھے اور آج انہیں موقع مل گیا تھا۔ ادھر زاویر ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا کہ محافظ بھاگتا آیا۔ صاحب غضب ہو گیا۔ وہ لڑکی جو بھی یہاں سے گئی ہے اسے کچھ لوگوں نے گیٹ سے تھوڑی دوری اٹھا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی زاویر کا دماغ معاف ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ پھر اگلی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت جاگی جس سے وہاں موجود محافظ کو بھی ڈرا دیا۔ اس کا وہ صبر، وہ قربانی، وہ ناٹک سب دھڑا کا دھڑا رہ گیا۔ دشمن نے وہی کیا جس کا اسے ڈر تھا۔ زاویر چیخا اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ نہیں، میں اس سے کچھ نہیں ہوتا گا۔ اب کسی شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اب وہ ایک شکاری تھا جس کا شکار چھین لیا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے خاص کمرے کی طرف بھاگا اور دیوار سے لگی اپنی مخصوص خودکار رائفل اتار لی۔ داؤد سکندر بھی شور سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے پوتے کے ہاتھ سے وہ ہتھیار اور آنکھوں میں خون دیکھا تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے زاویر کا کندھا تھپتھپایا۔ جا میرے شیر، آج انہیں بتا دو کہ سکندر خانقاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انصاف کیا ہوتا ہے۔ اپنی محبت کو واپس لے آؤ، میرا سایہ اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ زاویر نے اس بات میں سر لایا۔ اس نے گولیوں کی پیٹی کندھے پر ڈالی۔ آج یا تو وہ نہیں رہیں گے یا میں نہیں رہوں گا۔ ملک اسد نے میری زندگی کو ہاتھ لگایا، اب میں اس کی موت بن کر جاؤں گا۔ زاویر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور قافلہ آندھی اور طوفان کی طرح دشمن کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہر سے کی سڑکیں پھر سے اس کے نام سے کانپنے والی تھی۔ شہر سے دور ویرانے میں بنی ایک پرانی عمارت اس وقت میدان جنگ بن چکی تھی۔ زاویر سکندر وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں موت کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ دشمنوں نے ان کی گاڑیاں دیکھتے فائرنگ شروع کر دی تھی مگر زاویر کی گاڑی نہیں رکی۔ اسے سیدھا مرکزی دروازے سے گاڑی ٹکرا دی اور اندر داخل ہوا۔ گاڑی سے نکلتے ہی زاویر نے پوزیشن سنبھال لی۔ اس وقت اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جنون تھا جو سب کچھ فسم کر دینے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ساتھ ہی دشمنوں سے نپٹ رہے تھے مگر زاویر کا ہدف صرف ایک تھا، وہ کمرہ جہاں ہورن قید تھی۔ گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر رہی تھی، بارود کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی مگر وہ ایسے آگے بڑھ رہا تھا جسے یقین ہو کہ موت آج اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ ملک اسد اپنے گودام کے اندر بیٹھا خوش ہو رہا تھا کہ اس نے شکاری کو جھکا دیا ہے مگر جب اس نے باہر کا شور سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زاویر اتنی جلدی اور اس شدت سے حملہ کرے گا۔ زاویر دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک گولی آ کر اس کے بازو کو چھو کر گزری۔ خون کا فوارہ پھوٹا مگر زاویر نے رکنے کے بجائے اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ اسے درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ہورن کا روتا چہرہ آ رہا تھا۔ آخرکار وہ اس حال تک پہنچ گیا جہاں ملک اسد موجود تھا۔ ملک اسد نے ہورن کو کرسی پر باندھ رکھا تھا اور اس کے سر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ ہورن کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ رک جاؤ زاویر ورنہ میں اسے مار دوں گا، ملک اسد نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ زاویر رک گیا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ تم نے میری زندگی کو ہاتھ لگا کر بہت غلطی کی اسد۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ ملک اسد نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، پھینک دو اپنی بندوق۔ زاویر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بندوق کی نال سیدھی کی اور اس سے پہلے کہ اسد کچھ سمجھ پاتا
जावेर ने गोली चला दी। निशाना इतना पक्का था कि गोली सीधी असद के माथे के दरमियान में लगी और वो ढेर हो गया। हुरैन ने चीख कर आंखें बंद कर ली। जावेर भागकर उसके पास पहुंचा और उसकी रस्सियां खोली। हुरैन ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। वो कांप रही थी। जावेर ने उसे दिलासा दिया, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से। जावेर हुरैन को लेकर बाहर निकला। दुश्मन का सफाया हो चुका था और जावेर के साथियों ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। लेकिन जैसे ही खतरा टला, जावेर को अपने बाजू में शदीद तकलीफ महसूस हुई। खून बहुत ज्यादा बह चुका था, उसके कदम लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गया। हुरैन जो भी सदमे में थी, जावेर को गिरता देख तड़प उठी। उसे जावेर का सर अपनी गोद में रखा। जावेर, आपको क्या हुआ है? आंखें खोले, वो चीख रही थी। जावेर का चेहरा सर्द पड़ता जा रहा था। उसने मध्यम आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन है। जावेर के वफादार साथी फौरन दौड़ते हुए आए। उन्होंने जल्दी से जावेर को उठाया और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर लेटाया। हुरैन भी साथ बैठ गई। गाड़ी तूफानी रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हुई। रास्ते में हुरैन ने अपने दुपट्टे से जावेर का जख्म बांधने की कोशिश की। उसके अपने हाथ खून से रंगीन हो गए थे। वो मुसलसल रो रही थी और दुआ कर रही थी, मुझे माफ कर दे जावेर, मैंने आपको गलत समझा, अब मत जाए, मैंने वादा किया था। हुरैन की हिचकियां बंद गई थी। जावेर नीम बेहोशी की हालत में था। उसे हुरैन की आवाज दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। उसने बमुश्किल अपना हाथ उठाकर हुरैन के हाथ पर रखा। उसकी गिरफ्त कमजोर थी। उसे लग रहा था कि शायद ये उसका आखिरी सफर है। गाड़ी अस्पताल के हंगामी दरवाजे पर रुकी। अमला स्ट्रेचर लेकर भागा। जावेर को फौरन स्ट्रेचर पर डाला गया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया। हुरैन उनके साथ भाग रही थी, मगर डॉक्टर ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। बीबी, आप अंदर नहीं जा सकती, बीस की हालत बहुत तशवीशनाक है, खून बहुत बह गया है, डॉक्टर ने तेजी से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। ऑपरेशन थिएटर की बाहर सुर्ख बत्ती जल उठी। हुरैन दीवार के साथ लगकर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। वो लम्हे जो जावियर से लड़ने और उसे गलत समझने में जाया करती रही, अब उसे काट रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि जावियर ने उसे छोड़ने का ड्रामा सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था। वो शख्स अपनी जान पर खेल गया, सिर्फ उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर। ये सवाल था कि क्या वो वापस आएगा? क्या उनकी अधूरी शर्त पूरी हो सकेगी? अस्पताल की राहदारी में मौत और जिंदगी की जंग जारी थी। अस्पताल की लंबी और खामोश राहदारी में इंतजार की घड़ियां सदियों जैसी लग रही थी। हुरैन मुसलसल दुआएं मांग रही थी। कुछ ही देर में वहां ताहिर साहब, सलमा बेगम और दाऊद साहब भी पहुंच गए। दाऊद सिकंदर जो हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह रहते थे, आज अपने पोते की हालत पर परेशान थे। उन्होंने आगे बढ़कर हुरैन के सर पर हाथ रखा और उसे हौसला दिया। काफी घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सब उनकी तरफ लपके। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, गोली निकाली गई और वो खतरे से बाहर है, उन्हें होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। सबने शुक्र अदा किया। हुरैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह जब जावेर को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसकी बाजू पर पट्टी बंधी थी। उसे सर घुमा कर देखा तो हुरैन पास से कुर्सी पर बैठी थी। जावेर को होश में देखकर हुरैन के चेहरे पर रौनक आ गई। आप कैसे? उसने धीमी आवाज में पूछा। जावेर ने मुस्कुराने की कोशिश की। "अब पहले से बेहतर हूं।" हुरैन ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दे जावेर, मैंने आपके खुलूस पर शक किया। मैं नहीं जानती थी क्या हम सबकी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं। आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हुरैन की आवाज भराई हुई थी। जावेर ने उसके हाथ को हल्का सा दबाया। जान की बाजार लगाना आसान था, मगर तुमसे दूर होना मुश्किल था। मैंने जो भी किया तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। इसी अवस्था में कमरे का दरवाजा खुला और दोनों खानदान अंदर दाखिल हुए। ताहिर साहब ने आगे गए, फिर जावेर का माथा छूता। दाऊद सिकंदर ने अपने पोते को फख्र से देखा। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे वारिस हो। तुमने इज्जत और मोहब्बत दोनों की लाज रख ली, दाऊद सिकंदर ने कहा। फिर वो ताहिर की तरफ साहब की तरफ मुड़े और संजीदगी से बोले, ताहिर साहब, मेरा पोता आपकी बेटी को अपनी जान देने तक को तैयार है। क्या आप हमें
اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھ لے۔ طاہر صاحب نے مسکرا کر حورین کی طرف دیکھا جو کہ شرما گئی تھی۔ اس سے بہترین ساتھی میری بیٹی کو مل بھی نہیں سکتا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ کمرے میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ زاویہ نے شرارت سے حورین کی طرف دیکھا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، میری شرط ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، 15 دن پورے نہیں ہوئے، میں ٹھیک ہو کر دوبارہ دکان پر آؤں گا۔ زاویہ نے کہا۔ سب ہنس پڑے۔ حورین نے مسکرا کر اس بات میں سر لایا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ آج شہر کے ایک بڑے ہال میں بہت گہما گہمی تھی، ہر طرف روشنیوں اور پھولوں کی بہار تھی۔ یہ زاویہ اور حورین کی شادی کی تقریب تھی۔ زاویہ آج بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہ کالی دنیا، وہ ہتھیار، وہ دشمنیاں ہمیشہ کے لیے چھوڑتی تھی۔ اب وہ اپنی دادا کے ساتھ مل کر ان کا سفید پوش کاروبار سنبھال رہا تھا۔ داؤد سکندر بھی اپنے ماضی سے تائب ہو چکے تھے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ اسٹیج پر حورین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی سادگی آج بھی قائم تھی جو اسے باقی سب سے منفرد بنا رہی تھی۔ احد شیروانی پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی سے گھوم رہا تھا۔ طاہر صاحب و سلمیٰ بیگم مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ دونوں خاندان اب ایک ہو چکے تھے۔ امیر اور غریب کا فرق مٹ چکا تھا، اب صرف رشتوں کا مان تھا۔ زاویہ چلتا ہوا اسٹیج پر آیا، حورین کے برابر بیٹھ گیا۔ اس سے حورین کی طرف دیکھا تو حورین نے نظریں جھکا لی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ زاویہ نے سرگوشی کی۔ حورین مسکرا دی۔ شکریہ، آپ بھی برے نہیں لگ رہے۔ زاویہ نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا، ویسے کل صبح جلدی اٹھ جانا، دکان پر چینی کی نئی بوری آئی ہے، وہ تول لی ہے۔ پچھلی بار اماں جی نے بہت ڈانٹا تھا اور اس پر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ حورین یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں زندگی کی وہ تمام خوشیاں شامل تھیں جن میں اس نے خواب دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسے سفر کی تکمیل تھی جو نفرت اور انا سے شروع ہوا تھا اور محبت اور احسار پر ختم ہوا۔ زاویہ جو کبھی ایک شکاری تھا اب محبت کا اسیر بن چکا تھا اور اسے اس قید میں رہنا قبول تھا۔ کیمرے کی روشنیاں چمکی اور یہ خوبصورت لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔